Hello students, welcome to IE. In this video, we are going to discuss about a numerical on signals and system. So let us take the numerical. An LTI system having an impulse response ht equals to sine 4 by pi by t. An input of this one is applied at the input of the above system. So what will be the output of the system? Simple है, बट वी कैन और एक चीज क्या, ये जो न्यूमेरिकल है इसको मैं कुछ आप फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करके भी कर सकते हैं और बहुत सारे तरीके हैं जिससे मैं कर सकता हूं. बट इन दिस वीडियो, इन दिस केस वी आर गोइंग टू यूज द इजीएस्ट वे और द ट्रिकीएस्ट वे. तो आपका जो न्यूमेरिकल है, ये वाले न्यूमेरिकल पे आप देख सकते हैं आपके पास एक सिस्टम है जिसका इंपल्स रिस्पांस गिवन है. सो दैट मींस इफ आई ड्रॉ the block diagram representation, it will look like this. So this is the system right now, and this is the input, and this one is the output. So यहाँ पे मैं input डालूंगा और यहाँ पे मैं output मिलेंगे और ht वैल्यू कितना है? ht is given by sin 4t divided by pi t. Or let us assume the input as xt and output as yt. Now, according to the Fourier transformation, we know that if ये जो सिस्टम है, ये वाले सिस्टम का अगर मैं Fourier ट्रांसफॉर्म करता हूं, so this is ht. इसका अगर Fourier ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको मिलेंगे h ओमेगा. सिमिलरली yt का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा y of omega, and let us assume the Fourier transformation of the input xt as x omega. So these are the Fourier transformation of the input ht and the yt. So according to the Fourier transformation property, we can say that this y omega can be written as h omega into x of omega. We know this. ये तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं. बट ये जो तरीका है, ये तरीका से अगर आप निकालने जाएंगे तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा. सो वी विल यूज सम कॉन्सेप्ट्स टू मिनिमाइज द टाइम. टाइम को आपको मिनिमाइज करना है और आपको कैसे करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डालते हैं. आप देखिए, ये जो ht है, ht को मैं h ओमेगा करूंगा तो यहाँ पे जो ht है ये वाला फंक्शन है. सो नाउ for that, if I draw this function, आपको मालूम है कि if I have a function like this, sin at divided by pi t, इसको मैं अगर टाइम एक्सिस पे ड्रॉ करता हूं, ये मेरा टाइम एक्सिस है, so it will look like this. It will look like this. So this is the sin at divided by pi t. इसको अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म करता हूं, you know the Fourier transformation of this signal will come out as an rectangular signal. So this is the Fourier transformation of this one. So it will come out as a rectangular signal, and the rectangular signal will like this. और ये वैल्यू आपका होगा a, and this is minus a, and this is omega, and this is h of omega. So now ये आपको कॉन्सेप्ट है. Now मेरे पास अभी a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 4 है. So that means we have sin 4t divided by pi t. So यहाँ पे -4 आएंगे, यहाँ पे आपका +4 आएगा. So we have got the Fourier transformation or frequency response of this system as this one, and the magnitude will be 1 unit magnitude. Now what is this xt? xt का वैल्यू यहां पे लिखा है 2 cos 2t plus 6 sin 6t. So this is the xt that is going on. Now ये पहले वाले क्वेश्चन के लिए, पहला टर्म के लिए आपका फ्रीक्वेंसी कितना है? ओमेगा 1 is given as 2 rad per second, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है? ओमेगा 2 as 6 rad per second.
सो नाउ इफ यू लुक एट दिस दोनों, तो इसका एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज 2। दैट मींस ये जो मेरा इनपुट सिग्नल है, ये वाला इनपुट सिग्नल आपका एक पीरियोडिक सिग्नल है बिकॉज वी आर गेटिंग अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो दैट मींस इट इज अ periodic signal. So if it is a periodic signal, then this periodic signal is going inside this filter or system which is having a frequency response, this one. Now let us find the Fourier transformation of this equation. तो यहाँ पे cos 2t है, यहाँ पे 6 sin 6t है, तो ओमेगा 2 आपका 6 है, ओमेगा 1 2 है, तो cos फंक्शन है। तो I can write the frequency response of the first part, I can write also the frequency response of the second part. So what will be the frequency response of cos t and sin t को अलग-अलग लिखेंगे। So यहाँ पे आपका आएगा 2 pi del ओमेगा माइनस ओमेगा 0। ओमेगा 0 वैल्यू क्या है, यहाँ पे ओमेगा cos 2t के लिए ओमेगा का वैल्यू है 2, सो यहाँ पे आएंगे ओमेगा माइनस 2। सिमिलरली इट विल कम आउट टू बी सेकंड वाला टर्म क्या होगा cos t के लिए 2 pi del ओमेगा प्लस 2। सो दिस इज फॉर द 2 cos t, उसके साथ प्लस आपका आएंगे 6 sin t। तो 6 sin t को मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैं 6 को बाहर लिखता हूं और यहाँ पे प्लस डालता हूं और सिर्फ sin 6t का मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म करूंगा। सो इट विल कम आउट टू बी पाई बाय j इनटू डेल ओमेगा माइनस 6 प्लस पाई बाय j डेल ओमेगा प्लस 6। सो दिस विल बी द इक्वेशन, और यहाँ पे माइनस होंगे, साइन के लिए माइनस होता है, कॉस के लिए पॉजिटिव होता है। तो दिस विल बी द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इनपुट सिग्नल एंड दिस इनपुट सिग्नल इज पासिंग थ्रू दिस सिस्टम। अब देखिए ये जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम पे मेरा क्या हो रहा है कि जो जो फ्रीक्वेंसी मेरा 4 और -4 के अंदर है वो सारे फ्रीक्वेंसी पास हो जाएंगे और बाकी सारे को एटीन्यूएट कर देंगे। नाउ ये जो मेरा सिग्नल है x ओमेगा, this is nothing but the x omega. तो if I plot this x omega, what will be the plot? अगर मैं प्लॉट करूंगा कुछ इस तरीके का ओमेगा, तो देखिए ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा माइनस 2। तो इफ इट इज 0 देन ओमेगा माइनस 2 पे आपका एक इंपल्स आएगा, तो यहाँ पे एक इंपल्स 2 पे, यहाँ पे -2 पे एक इंपल्स, तो यहाँ पे ये वाला टर्म आएगा। और ओमेगा इक्वल्स टू -6 पे -5/j है, तो नीचे वाले टर्म पे आएंगे। सो दिस इज द सैंपल्स ऑफ दिस x ओमेगा। नाउ दिस टोटल सिग्नल इज पासिंग थ्रू दिस। तो क्या होगा, आपके पास जो फिल्टर सिस्टम है उस सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कहां पे है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 4 से लेकर -4 तक। आउटपुट में क्या होंगे, सिर्फ ये वाला सिग्नल पास हो, सैंपल पास होगा, ये 6 वाला सैंपल और -6 वाला सैंपल नहीं पास होंगे। सो आपके जो आउटपुट्स आएंगे इससे क्या होगा, सिर्फ 2 वाला कंपोनेंट और -2 वाला कंपोनेंट रहेंगे। दैट मींस ये वाले सिग्नल आपको बाहर मिलेंगे। दैट मींस ये जो इनपुट है, ये सारे इनपुट के लिए ये जो मेरा इनपुट था, ये वाले इनपुट में आप देख रहे हैं कि इसका जो सैंपल्स है फ्रीक्वेंसी डोमेन पे वो 2 और -2 पे है, और 6 sin 6 की सैंपल आपका 6 पे है और -6 पे है। आफ्टर पासिंग थ्रू दिस सिस्टम, ये वाला सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ये है, तो 6 और -6 वाले दो सैंपल जो है, ये सैंपल आपका पास नहीं होगा, सिर्फ 2 और -2 पे जो फ्रीक्वेंसी सैंपल है वही पास होंगे। दैट मींस आपका ये वाले जो टर्म है सेकंड टर्म, ये वाला टर्म यहाँ पे एटीन्यूएट हो जाएंगे। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट जो आएंगे यहाँ पे सिर्फ आपका 2 cos 2t आएंगे और ये वाला टर्म आपका एटीन्यूएट हो जाएगा। So in this way, by using the Fourier transform, you can see I can easily find the output of this system। उसके लिए बस आपका ये कॉन्सेप्ट जरूरी है कि ये जो सिग्नल sin 80/πt है,
इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एक रेक्टेंगुलर पल्स होता है और इसका वैल्यू माइनस से प्लस से होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको जरूरी है। ये वाले कॉन्सेप्ट के बिना आपको क्या होगा कि इसको आप फूरियर ट्रांसफॉर्म करना होगा, डेरिवेशन करना होगा, फिर आपको यही वाला मिलेंगे। सो हमेशा आपको ये याद रखना है कि ये जो मेरा सिग्नल है, इस टाइप का सिग्नल अगर आपके पास है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला होगा। So hopefully you have understood this numerical. In this numerical, what we have done, we have used the Fourier transform and some concept for finding the value of the output for a given input. So this is all about this numerical. Thank you.